اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ مالک بن نویرہ لیلا کا پجاری تھا۔ اس پر لیلا کا حسن جادو کی طرح سوار تھا۔ اس زمانے میں سردار اپنی بیویوں کو لڑائیوں میں اپنے ساتھ رکھتے تھے، لیکن یہ لڑائی اس قسم کی تھی کہ مالک لیلا کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ لیلا سے وہ زیادہ دیر تک دور بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر کہیں قریب ہوتا تو رات کو اس کے پاس آ جایا کرتا۔ وہ اس رات آ گیا تھا۔ مالک بن نویرہ نے پوچھا، کیا اس پلنگ پر کوئی سویا ہوا ہے؟ لیلا نے کہا، نہیں، تمہارے لیے ایک تحفہ ڈھانپ کر رکھا ہوا ہے۔ 3 پھول ہیں لیکن مرجھا گئے ہیں۔ مالک نے لپک کر چادر ہٹائی اور یوں پیچھے ہٹ گیا جیسے پلنگ پر سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو۔ اس نے لیلا کی طرف دیکھا۔ لیلا نے کہا، خون پینے والے درندے کے لیے اس سے اچھا تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور اسے سنایا کہ ان کی مائیں کس طرح آئی تھیں اور کیا کچھ کہہ گئی ہیں۔ اس نے اپنا دودھ پیتا بچہ مالک کے آگے کر کے کہا، جا لے جا اسے اور اس کا بھی خون پی لے۔ کیا تو وہ مالک بن نویرہ ہے جسے لوگ ہنسمکھ کہتے ہیں؟ کیا یہ ہے تیری سخاوت اور شجاعت کہ تو ایک عورت کے جال میں آ کر لوٹ مار کرتا پھر رہا ہے؟ اگر تو بہادر ہے تو مدینہ پر چڑھائی کر، یہاں نہتے مسلمانوں کو قتل کرتا پھر رہا ہے۔ مالک بن نویرہ معمولی آدمی نہیں تھا۔ اس کی شخصیت میں انفرادیت تھی جو دوسروں پر تاثر پیدا کرتی تھی۔ اس نے تانے کبھی نہیں سنے تھے، اس کا سر کبھی جھکا نہیں تھا۔ لیلا نے اسے خاموش کھڑا دیکھ کر کہا، کیا یہ ہے تیرا غرور؟ کیا تو ان معصوم بچوں کی لاشوں پر تکبر کرے گا؟ ایک عورت کی خاطر ایک عورت نے تیرا غرور اور تکبر توڑ کر تجھے قاتل اور ڈاکو بنا دیا ہے۔ میں اپنے بچے کو تیرے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں، پیچھے سے ایک تیر میری پیٹھ میں اتار دینا۔ مالک بن نویرہ گرج کر بولا، لیلا، مگر وہ بجھ کر رہ گیا اور مجرم سی آواز میں کہنے لگا، میں کسی عورت کے جال میں نہیں آیا۔ لیلا نے کہا، جھوٹ نہ بول مالک، میں جا رہی ہوں، سجا کو یہاں لے آ۔ یہ یاد رکھ لے، تیری سرداری، تیری خوبصورتی، تیری شاعری اور تیری خونخواری تجھے ان مرے ہوئے بچوں کی ماؤں کی آہوں اور فریادوں سے بچا نہیں سکیں گی۔ یہ تو صرف 3 لاشیں ہیں، بستیوں کو لوٹتے معلوم نہیں کتنے بچے تیرے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلے گئے ہوں گے۔ تو سزا سے نہیں بچ سکے گا، تیرا بھی خون بہے گا اور میں کسی اور کی بیوی ہوں گی۔ مالک بن نویرہ نے یوں چونک کر لیلا کی طرف دیکھا جیسے اس نے اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا باہر نکل گیا۔ مالک بن نویرہ رات بھر واپس نہ آیا۔ صبح طلوع ہوئی۔ بطاح جو بارونق بستی تھی ایک ایسے مریض کی طرح دکھائی دے رہی تھی جو کبھی خوبرو جوان ہوا کرتا تھا۔ اب اس کا چہرہ بے نور اور آنکھوں میں موت کا خوف رچا ہوا تھا۔ بطاح کی عورتوں کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ یہ اس مار دھاڑ کا نتیجہ تھا جو بنو تمیم میں ہو رہی تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں آئیں تو بطاح کی گلیوں میں ڈری ڈری سی داخل ہوئیں۔ اس وقت سورج کچھ اور اوپر اٹھایا تھا جب بطاح میں ہڑبانگ مچ گئی۔ بعض عورتیں بچوں کو اٹھا کر گھروں کو دوڑی گئیں اور اندر سے دروازے بند کر لیے۔ کچھ عورتیں اپنی جوان بیٹیوں کو ساتھ لیے بستی سے نکل گئیں۔ وہ کہیں چھپ جانے کو جا رہی تھی۔ بوڑھے آدمی کمانے اور ترکش اٹھائے چھتوں پر چڑھ گئے۔ بوڑھوں کے علاوہ جو آدمی بستی میں تھے انہوں نے برچھیاں اور تلواریں نکال لیں۔ کسی نے بڑی بلند آواز سے کہہ دیا تھا کہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے۔ دور زمین سے جو گرد اٹھ رہی تھی وہ کسی لشکر کی ہی ہو سکتی تھی۔ بطاح میں جوان آدمی کم ہی رہ گئے تھے۔ سب مالک بن نویرہ کے ساتھ دوسرے قبیلوں کی لڑائی میں چلے گئے تھے۔ بطاح میں جو رہ گئے تھے ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ لیلا کے گھر میں پلنگ پر 3 بچوں کی لاشیں پڑی تھیں اور وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے اپنے قلعہ نما مکان کی چھت پر کھڑی تھی۔ وہ بار بار اپنے بچے کو دیکھتی اور چومتی۔ وہ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ بچوں کے خون کا انتقام اس کے بچے سے لیا جائے گا۔ زمین سے اٹھتی ہوئی گرد بہت قریب آ گئی تھی اور اس میں گھوڑے اور اونٹ ذرا ذرا دکھائی دینے لگے تھے۔ بطاح میں کسی کی آواز سنائی دی، ہوشیار، بنو یربو خبردار، جانیں لڑا دو، ڈرنا نہیں۔ لشکر گرد سے نکل آیا اور قریب آ گیا۔ بستی کے کئی ایک مرد گھوڑوں پر سوار ہاتھوں میں برچیاں اور تلواریں لیے آگے چلے گئے۔ ان کا انجام ظاہر تھا، لیکن انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر لشکر کی ترتیب میں کوئی فرق نہ آیا۔ آگے جا کر وہ لشکر کا حصہ بن گئے۔ انہوں نے نعرے لگائے، اپنے ہیں، اپنے ہیں، مالک بن نویرہ ہے، لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ بطاح میں سے بھی نعرے گونجنے لگے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کا استقبال کیا۔ مالک بن نویرہ کہیں بھی نہ رکا۔ وہ سیدھا اپنے گھر کے دروازے پر آیا اور گھوڑے سے کود کر اندر چلا گیا۔ اسے لیلا صحن میں کھڑی ملی۔ اس کے دلکش چہرے پر اداسی تھی اور اس کی وہ آنکھیں بجھی بجھی سی تھی جن پر قبیلے کے جوان جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ وہ بولا، میں نے تیرا حکم مان
लिया है लैला, लड़ाई खत्म कर दी है, हम एक दूसरे के कैदी वापस कर देंगे। मैंने सजा से ताल्लुक तोड़ लिया है, इस फूल से चेहरे से उदासी धो डालो। लैला उदास बैठी रही। मालिक ने उसे बहलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लैला का चेहरा बुझा ही रहा। लैला ने कहा, मेरे दिल पर एक खौफ बैठ गया है। मालिक ने पूछा, कैसा खौफ, किसका खौफ? लैला ने कहा, सजा का, इंतकाम का। सजा अकेली रह गई। वकी बिन मालिक ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। मालिक बिन नवैरा ने वकी से कहा था कि वो एक औरत के झांसे में आकर अपने कबीले पर टूट पड़े थे। सजा अपने लश्कर को साथ लिए नबाज की तरफ चली गई थी। पहले जब वो यमामा पर हमला करने गई थी, लेकिन मुसलमा के जाल में आ गई और मुसलमा ने उसे अपनी बीवी बना लिया। मालिक बिन नवैरा के गुनाहों की सजा शुरू हो चुकी थी। वकी बिन मालिक जो उसका दस्ते रास्त था, उसका साथ छोड़ गया और मुसलमानों से जा मिला। मालिक बिन नवैरा ने उसे रोका था। मालिक ने वकी से कहा था, अगर हम दोनों अलग हो गए तो मुसलमान हमें कुचल कर रख देंगे, हम दोनों मिलकर उनका मुकाबला कर सकते हैं। वकी ने कहा था, हमें जिंदा रहना है मालिक। मदीने की फौज का मुकाबला किसने किया है? गतफान हार गए, तई हार गए, बनु सलीम, बनु असद, हवाजन, कोई भी मुसलमानों के आगे न ठहर सका। फिर सब इकट्ठे हुए और उम्मे ज़िमल सलमा को भी साथ मिला लिया। क्या तुम नहीं जानते मालिक, अल वलीद के बेटे खालिद ने उन्हें किस तरह भगा दिया है? सलमा कत्ल कर दी गई। मुसलमान हमें मुसलमानों का खून माफ नहीं करेंगे। तमाम कबीलों को शिकस्त देने वाला खालिद वापस मदीना नहीं चला गया, वो बजाखा में है। दूसरी तरफ मुसलमानों का माना हुआ सिपाह सालार उसामा है। उन दोनों में से कोई भी किसी भी वक्त यहाँ का रुख कर सकता है। उनसे खून माफ करवाने का एक ही तरीका है कि मैं उनकी इताअत कबूल करके उन्हें अपने कबीले की ज़कात और महसूल अदा करता रहूं। मालिक बिन नवैरा कोई फैसला न कर सका। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु तक इत्तला पहुंच चुकी थी कि मालिक बिन नवैरा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मुकर्रर किया था, मगर उसने ज़कात वगैरह वसूल करके मदीना न भेजी और लोगों को वापस कर दी। जासूसों ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को मालिक का एक शेर भी सुनाया। उसमें उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अपने कबीले से कहा था कि अपने माल को अपने पास रखो और मत डरो कि न जाने क्या हो जाए। अगर इस्लामी हुकूमत की तरफ से हम पर कोई मुसीबत आएगी तो हम कहेंगे कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल किया था, अबू बकर के दीन को नहीं। मालिक बिन नवैरा ने सजाह के साथ मिलकर मुसलमानों का जो कत्लेआम किया था, उसकी भी इत्तला खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को मिल गई थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दस्तों को बताह की तरफ तेज कूच का हुक्म दिया। उनके दस्तों में अंसार मदीना भी थे। उन्होंने बताह की तरफ पेश कदमी की मुखालिफत की। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, मैं अपनी सिपाह में पहले आदमी देख रहा हूँ जो अपने अमीर और सालार की हुक्मदूली कर रहे हैं। अंसार की नुमाइंदगी करने वाले ने कहा, इसे हुक्मदूली समझे या जो कुछ भी समझे, खलीफतुल मुस्लिमीन का हुक्म ये था कि तुलैहा को मुती करके इस इलाके में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम की हुई अमलदारी को बहाल करें और जो जंग पे उतराए हैं उनसे जंग करें और बजाखा में अगले हुक्म का इंतजार करें। हम जानते हैं कि मदीना से ऐसा कोई हुक्म नहीं आया कि हम बताह पर हमले के लिए जाएं। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या तुम में कोई है जिसे ये मालूम न हो कि मैं तुम्हारा अमीर और सिपाह सालार हूँ? सब उनकी तरफ देखने लगे। उन्हें कोई जवाब न मिला तो उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि खलीफतुल मुस्लिमीन के साथ तुम क्या मुआहिदा करके आए हो। मैं ये जानता हूँ कि खलीफा ने मुझे ये हुक्म दिया है कि जहाँ भी इस्लाम से इन्हिराफ की खबर मिले और जहाँ भी मदीना के साथ किए हुए मुआहिदों की खिलाफ वर्जी नजर आए, वहां तक जाओ और इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करो। मैं सिपाह सालार हूँ। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए अगर मुझे कोई ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी जो खलीफा के अहकाम में शामिल नहीं होगी तो मैं वो कार्रवाई जरूर करूंगा। खिलाफत के अहकाम मेरे पास आते हैं, तुम्हारे पास नहीं। अंसार में से किसी ने कहा, हमने कोई कासिद आता नहीं देखा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझता और मैं किसी ऐसे आदमी को अपनी सिपाह में नहीं देखना चाहता जिसके दिल में जरा सा भी शक व शुबा हो। मुझे अल्लाह की खुशनुदी चाहिए। अगर तुम्हें अपनी जात की खुशनुदी चाहिए तो जाओ, अपने आप को खुश करो। मेरे लिए महाजरीन काफी हैं और मेरे साथ जो नौ मुस्लिम हैं मैं उन्हें भी काफी समझता हूँ। मशहूर मौर्रिख तबरी ने लिखा है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अहकाम में ये शामिल किया था कि बनु असद के सरदार तुलैहा की सरकूबी के बाद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्ते बताह तक जाएंगे जहाँ के अमीर मालिक बिन नवैरा ने ज़कात और महसूलात की अदायगी नहीं की और वो इस्लाम से मुनहरिफ होकर इस्लाम का दुश्मन बन गया है। तबरी और दीगर मौर्रिखों ने यह भी लिखा है कि अंसार बजाखा में रह गए
और खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपने मुजाहिदीन को उनके बगैर बताह ले गए। जब ये लश्कर बज़ाखा से चला गया तो अंसार ने बाहम मशवरा किया। वो महसूस करने लगे थे कि इतनी दूर से इकट्ठे आए थे, इकट्ठे लड़ाइयाँ लड़ी और अब हम में फूट पड़ गई। हमें पीछे नहीं रहना चाहिए था। अंसार में से एक ने कहा, और इसलिए भी हमें पीछे नहीं रहना चाहिए था कि महाजरीन और नौ मुस्लिमों ने फतह हासिल कर ली तो उसमें हमारा नाम नहीं होगा, हमें मदीने जाकर शर्मसारी होगी। एक और ने कहा, और इसलिए भी कि खालिद बिन वलीद को अगर कहीं शिकस्त हुई तो मदीने में लोग हम पर लानत भेजेंगे कि हमने मदीने से इतनी दूर महाज पर जाकर खालिद को और अपने साथियों को धोखा दिया, हम मलून कहलाएंगे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के दस्ते बज़ाखा से दूर निकल गए। एक तेज रफ्तार घुड़सवार पीछे से आन मिला और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जा घोड़ा रोका। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या तुम अंसार में से नहीं जो पीछे रह गए थे? सवार ने कहा, हाँ अमीर लश्कर, मैं उन्हीं में से हूँ। उन्होंने भेजा है कि मैं आपसे कहूँ कि उनका इंतजार करें, वो आ रहे हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दस्तों को रोक लिया। कुछ देर के बाद तमाम अंसार आ गए और दस्ते बताह की तरफ रवाना हो गए। बताह में मालिक बिन नवैरा अपनी बीवी से कह रहा था, लैला तूने मुझे मोहब्बत दी, तेरी जात मेरे शेरों में नई रूह डालती है, अब मुझे हौसला दे, मेरे दिल में खौफ ने आशियाना बना लिया है। लैला ने कहा, मैंने तुझे पहले दिन कहा था गुरूर और तकब्बुर छोड़ दे, लेकिन तुम इतनी दूर निकल गए कि इंसान को चींटियां समझकर मसल दिया। मालिक बिन नवैरा ने कहा, मत याद दिला मुझे मेरे गुनाहों ने मेरी बहादुरी को डस लिया है। लैला ने पूछा, आज क्या बात हो गई कि तुम पर इतना खौफ तारी हो गया है? मालिक बिन नवैरा ने कहा, क्या पूछती हो तुम, ये मौत की बात है। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि तेरा मेरा साथ खत्म हो रहा है। मैंने अपने जासूस बड़ी दूर दूर तक भेज रखे हैं। आज एक जासूस आया है, उसने बताया है कि मुसलमानों का लश्कर बड़ी तेजी से इधर आ रहा है। अगर लश्कर की यही रफ्तार रही तो परसों शाम तक वो यहाँ पहुँच जाएगा। लैला ने कहा, फिर तैयारी करो, कबीलों को इकट्ठा करो। मालिक ने डरे हुए लहजे में कहा, कोई मेरा साथ नहीं देगा। मैंने वकी और सजा के साथ मिलकर अपने कबीलों का जो खून बहाया है वो कोई नहीं बख्शेगा। उनसे मसालहत तो कर ली थी लेकिन दिल फटे हुए हैं। मेरे कबीले की मदद को कोई नहीं आएगा। लैला ने कहा, फिर आगे बढ़ो और मुसलमानों के सिपाह सालार से कहो कि तुमने इस्लाम तर्क नहीं किया। मालिक ने कहा, नहीं वो नहीं बख्शेंगे, वो किसी को नहीं बख्शेंगे। मालिक बिन नवैरा पर खौफ तारी होता चला गया। उसे खबरें मिल रही थी कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर करीब आ रहा है। उसने अपने कबीले को इकट्ठा किया, कहा, ए बनु जरबू, हमसे गलती हुई कि हमने मदीने की हुक्मरानी को तस्लीम किया और उनसे मुनहरिफ हो गए। उन्होंने हमें अपना मजहब दिया जो हमने कबूल किया, फिर नाफरमान हो गए। वो आ रहे हैं, सब अपने घरों को चले जाओ और दरवाजे बंद कर लो। ये निशानी है कि तुम उनके खिलाफ हथियार नहीं उठाओगे। उनके बुलाने पर उनके सामने निहत्ते जाओ, कुछ फायदा न होगा मुकाबले में। जाओ अपने अपने घरों को चले जाओ। लोग सर झुकाए हुए अपने घरों को चले गए। नवंबर 632 ईस्वी शाबान 11 हिजरी के पहले हफ्ते में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बताह पहुंच गए। उन्होंने अपने लश्कर को मुहासरे की तरतीब में किया, मगर ऐसे लगता था जैसे बताह उजड़ गया हो। शहर का दिफा करने वाले तो नजर ही नहीं आते थे, कोई दूसरा भी दिखाई न दिया। किसी मकान की छत पर एक भी सर नजर नहीं आता था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने नायब सालारों से कहा, क्या मालिक बिन नवैरा अपने आप को इतना चालाक समझता है कि मुझे घेरे में ले लेगा? मुहासरे की तरतीब बदल दो और अपने अकब का ख्याल रखो, मैं इस बस्ती को आग लगा दूंगा। वो यहाँ से निकल गए हैं और अकब से हमला करेंगे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदा दिल, बेखौफ और मुहिमजू थे। उनके अहकाम बहुत सख्त हुआ करते थे। उन्होंने अपने दस्तों को इस तरतीब में कर दिया कि अकब से हमला हो तो रोक लें और अगर उसके साथ ही शहर से भी हमला हो जाए तो दोनों तरफ लड़ा जाए। मुसलमानों को इस दुश्वारी का सामना था कि उनकी नफरी थोड़ी थी और वो अपने मुस्तकर से बहुत दूर थे। उन्होंने जिन कबीलों को मुती किया था उनकी बस्तियों को अड्डे बना लिया था, लेकिन अभी वहाँ के लोगों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता था। ये खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की पुरजोश और माहिराना क़यादत थी जो मुजाहिदीन की कलील तादाद में बिजलियों जैसा कहर पैदा किए रखती। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बस्ती में एक दस्ता दाखिल किया तो उस पर एक भी तीर न आया। हर मकान का दरवाजा बंद था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये खामोशी देखी तो वो खुद बस्ती में दाखिल हुए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कई बार मालिक को पुकारा और कहा, मालिक बिन नवैरा बाहर आ जाओ, नहीं आओगे तो हम बस्ती को आग लगा देंगे। एक छत से एक आदमी की आवाज आई, तुझ पर खुदा की सलामती हो, मत जला हमारे घरों को। वो जिसे तू बुला रहा है यहाँ नहीं है, यहाँ कोई नहीं लड़ेगा। एक और छत से आवाज आई, अल वलीद के बेटे, क्या तू नहीं देख रहा कि हम अपने मकानों के बंद दरवाजों के पीछे बैठे हैं? क्या मदीने में ये रिवाज नहीं कि बंद दरवाजा एक इशारा है कि आ जाओ, हम तुम्हारे खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, बेशक मैं ये इशारा समझता हूँ। मकानों के दरवाजे खोल दो और बाहर आ जाओ, औरतों और बच्चों पर जबर नहीं।
उनकी मर्जी है बाहर आए या ना आए। लोगों को रस्म रिवाज मालूम था। वो हथियारों के बगैर बाहर आ गए। औरतें और बच्चे भी निकल आए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दस्तों को हुक्म दिया कि हर घर के अंदर जाकर देखें कोई आदमी अंदर न रह जाए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने खास तौर पर हुक्म दिया कि किसी घर में किसी चीज को हाथ न लगाया जाए, न किसी पर हल्का सा भी तशद्दुद किया जाए। मालिक बिन नवैरा के कलानुमा मकान में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु खुद गए। वहाँ सामान पड़ा था। ऐसा लगता था जैसे यहाँ के रहने वाले कुछ ही देर पहले यहाँ से निकले हों। बस्ती से खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को इतना ही पता चला कि मालिक बिन नवैरा अपने कबीले को ये कहकर कि वो मुसलमानों के खिलाफ हथियार न उठाएं, लैला को साथ लेकर बस्ती से निकल गया था। जिन्होंने उसे जाते देखा था उन्होंने समत बताई जिधर वो गया था। मालिक घोड़े पर और लैला ऊंट पर सवार थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इर्द गिर्द की बस्तियों को अपने आदमी भेज दिए और कुछ आदमी उस समत रवाना किए जिधर बताया गया था कि मालिक गया है। वो सहरा था। ऊंट और घोड़े के कदमों के निशान बड़े साफ थे। ये खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के आदमियों को एक बस्ती में ले गए। ये बनु तमीम की एक बस्ती थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के आदमियों में से एक ने बुलंद आवाज से कहा, ऐ बनु तमीम, मालिक बिन नवैरा को और बताह का कोई और आदमी जो यहाँ छुपा हुआ है उसे हमारे हवाले कर दो। अगर वो हमारी तलाशी पर मिले तो इस बस्ती को आग लगा दी जाएगी। जरा ही देर के बाद मालिक बिन नवैरा लैला के साथ बाहर आया और अपने आप को खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के आदमियों के हवाले कर दिया। बनु यरबू के चंद और सरकर्दा अफराद भी जो यहाँ आकर छुप गए थे बाहर आ गए। उन सबको मालिक बिन नवैरा के साथ बताह ले आए। लैला भी साथ थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मालिक को अपने सामने बुलाकर पूछा, मालिक बिन नवैरा, क्या ये गलत है कि तुमने ज़कात और महसूल मदीना को भेजने की बजाय लोगों को वापस कर दिए थे? मालिक बिन नवैरा ने जवाब दिया, मैं अपने कबीले को ये कहकर निकला था कि मुसलमानों का मुकाबला न करना, और मैंने उन्हें ये भी कहा था कि मुसलमान हो जाओ और ज़कात अदा करो। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, और तुम खुद इसलिए रूपोश हो गए थे कि तुम इस्लाम से मुनहरिफ हो गए थे और तुम मुनहरिफ ही रहना चाहते हो। तुमने अपने शेरों में लोगों से कहा था कि वो ज़कात और महसूल अदा न करें, और तुमने उन्हें कहा था कि इस्लामी हुकूमत के अहकाम की तुम खिलाफ वर्जी करोगे, जो तुमने की। मालिक ने कहा, हाँ वलीद के बेटे, मैंने खिलाफ वर्जी की, लेकिन मैं अपने कबीले से कह रहा हूँ कि अब वो खिलाफ वर्जी न करें। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, और तुमने सजा की झूठी नबुव्वत को तस्लीम किया और उसके साथ मिलकर लोगों को कत्ल किया और उन्हें लूटा, और तुमने उन लोगों का कत्लेआम किया जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। मालिक ने सर हिलाकर इस जुर्म का इकरार किया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या तू मुझे बता सकता है कि मैं तुझे कत्ल क्यों न करूं? मालिक बिन नवैरा ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे खलीफा ने तुम्हें मेरे कत्ल का हुक्म नहीं दिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, खुदा की कसम, मैं तुझे जिंदा रहने का हक नहीं दे सकता। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो उजड़ी हुई बस्तियां देखी थी जो मालिक बिन नवैरा और सजाह ने उजाड़ी थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मालिक बिन नवैरा की बस्ती बताह पर बिला वजह चढ़ाई नहीं की थी। उन्हें तमाम रिपोर्टें मिलती रहती थीं कि उस शख्स ने उस इलाके में मुसलमानों को किस तरह तबाह बर्बाद किया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया, ले जाओ इसे और इसके साथियों को जो इसके साथ रूपोश थे और इन्हें कत्ल कर दो। उन्हें जब ले गए तो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को इत्तला दी गई कि एक बड़ी ही हसीन औरत जिसका नाम लैला है और जो मालिक बिन नवैरा की बीवी है, अपने खामद की जिंदगी की इल्तिजा लेकर आई है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि उसे आने दो। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु एक सरदार के फर्जंद थे। उन्होंने अमीर घराने में परवरिश पाई थी, इसलिए उनके दिलो दिमाग में वुसअत थी। वो खुश ज़ौक़, खुश तबा और जिंदा मिजाज थे। लैला जब उनके सामने आई तो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या तू अपने खामद को मौत से बचाने आई है? लैला ने कहा, इसके सिवा मेरा और मकसद ही क्या हो सकता है? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर तू उस वक्त उसे उन जराइम से रोक देती जब वो समझता था कि हर बस्ती पर उसकी हुक्मरानी है, तो आज तू बेवा न होती। क्या उसने तुझे बताया नहीं था कि उसकी तलवार ने कितनी औरतों को बेवा किया है? उसे मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक दिन इंसाफ का भी आएगा? लैला ने कहा, मैं उसका हाथ नहीं रोक सकी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, और तू मेरा हाथ भी नहीं रोक सकती, ये मेरा नहीं अल्लाह का हुक्म है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने लैला की इल्तिजा कबूल न की। लैला अभी खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ही थी कि इत्तला आई कि मालिक बिन नवैरा और उसके साथियों को कत्ल कर दिया गया है। फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के दस्तों में और मदीना में हलचल मचा दी। हुआ यूं के बताह में ही खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने लैला के साथ शादी कर ली। अंसार मदीना इस शादी पर बहुत बरहम हुए। अबू क़तादा अंसारी ने कसम खाई कि वो आइंदा खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में कभी किसी लड़ाई में शरीक नहीं होंगे। एतराज़ करने वाले ये कहते थे कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने लैला की खूबसूरती से मुतासिर होकर उसके खावंद मालिक बिन नवैरा को कत्ल किया,
कि लैला के साथ खुद शादी कर सके। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के हक में बात करने वालों ने कहा है कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मालिक बिन नवैरा और उसके साथियों को कैद में डाल दिया था और उन्हें मदीना भेजना था। रात बहुत सर्द थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्याल आया कि कैदी सर्दी से ठिठुर रहे होंगे। उन्होंने हुक्म दिया, दाफू असराकुम। उसका तर्जुमा है कि कैदियों को गर्मी पहुंचाओ। किनाना की जबान में मुदाफा का लफ्ज कत्ल के मानों में इस्तेमाल होता है। बदकिस्मती से ये कैदी जिन आदमियों के पहरे में थे वो किनाना के रहने वाले थे। उन्हें ये भी मालूम था कि मालिक बिन नवैरा और उसके साथियों के जराइम कितने संगीन हैं। चुनाचे उन्होंने गर्मी पहुंचाओ को कत्ल के मानों में लिया और मालिक और उसके साथियों को कत्ल कर दिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला तो उन्होंने कहा, अल्लाह जो काम करना चाहता है वो होके रहता है। इन दो के अलावा और भी रिवायात मुख्तलिफ तारीखों में आई हैं जो एक दूसरे की तरदीद करती हैं। इनमें बाज खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के हक में जाती हैं और बाज खिलाफ। मुखालिफाना रिवायात के मुसन्निफों के मजहबी फिरकों को देखो तो पता चलता है कि उनके एक एक लफ्ज में तासुब भरा हुआ है और वो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को रुस्वा कर रहे हैं। तारीख में मुतजाद कहानियां मिलती हैं, लेकिन किसी भी मौरिख ने ये नहीं लिखा कि इस शादी पर लैला का रद्द अमल क्या था। क्या लैला ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को मजबूर होकर कबूल किया था, या वो खुश थी कि एक अजीम सिपह सालार की बीवी बन गई है जिसकी फतूहात के चर्चे सरजमीन अरब के गोशे गोशे तक पहुंच गए हैं। उस वक्त के जंगी रिवाज के मुताबिक लैला माल गनीमत थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु उसे लौंडी बनाकर अपने पास रख सकते थे। तारीख में एक ऐसा इशारा मिलता है जो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के हक में जाता है। वो यूं के खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे किसी की या अपनी लौंडी बनने से बचा लिया। वो शहजादी थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु जानते थे कि लौंडियों की जिंदगी क्या होती है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये भी देख लिया था कि वो जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज़हीन और दाना भी। उन्होंने उस औरत की सलाहियतों को तबाही से बचा लिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।